Hello students, today we have to start with chapter number 4 from geography portion in class 9th from social science. That is chapter number 4, the name of chapter is climate. Climate और आप इसको कह सकते हो जलवायु. Students, climate is very important chapter, or we can say it is very important topic from geography portion. Now in this chapter basically first we will study about, we can say, the introduction, means first we will introduce our chapter, then we have to basically we have to do the difference between climate and weather, then we have to do the climatic controls, means various climatic controls we are having, that we have to discuss. Even we'll also discuss about the climatic and we can say weather elements also. Then next topic that we have to study in this chapter, that is basically we can say factors affecting India's climate, like we can say latitude, altitude, pressure and winds. Then Indian monsoon also we have to study, means how the word monsoon have been arrived and what is the meaning of the monsoon and what kind of monsoon we are having in our country. So basically we have to study in this chapter about the monsoon, or we can say about the monsoon climatic conditions, right? So one set of monsoon and withdrawal, that also we have to study in this chapter. Then next topic that which we have to do, that is related to seasons. So several seasons we are having, right? So we have to do those seasons also, like cold weather season, winters, or we can say hot weather season, summer, or we can say advancing monsoon season, that is basically the rainy season. And the fourth one that we have to do, that is retreating, or we can say post monsoon season. Next topic that we have to do in this chapter, that is basically related to distribution of rainfall, means in different regions we do not receive the same amount of rainfall. So we are having basically we can say means variations in the rainfall also. So distribution of rainfall among us, the different states, or we can say among us, the different regions of the country. At the end we have to do, that is monsoon as a unifying bond. So these all topics which we have to do in this chapter. Now the next, basically we have to start with the introduction part. Now students, so far in geography, means we have already completed 3 chapters. So far we have studied in first chapter related to the extension of our country, or we can say related to the size of our country, or we can say related to the neighbor countries, or how we used to decide the time of any region, or we can say any country, that we can say a standard meridian, right? So basically landforms, or we can say drainage. And in the second chapter we have studied, that is related to physiographic divisions, or you can say physical features of our country. So they have played a very important role in climate also. So we can say, means important three elements, or we can say these 3 basic elements, they have basically we can say have put impact on natural environments also. So these also influence the climatic conditions in the region. So now we have to do the basic difference between climate and weather. Now students, climate and weather, we are having a basic difference between climate and weather. क्लाइमेट और वेदर में हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके चेंज होता है. सो वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन क्लाइमेट द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट वी कैन से दैट इज मोर देन 30 years, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके और बहुत बड़े एरिया को जब कवर करता है, और वो लंबा टाइम हम कह सकते हैं 20 years, 25 years और 30 years, तो उसमें जाके जब चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. और जो शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं, जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, जिनमें वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ एन एटमॉस्फेयर ओवर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, right, for which basically covers small area, that is basically called weather. Or you can say, you can define an hour to hour or day to day changes in the atmosphere, that is called weather. जो frequently change होता है, जो हम practically हमारी life में भी observe करते हैं. कभी rainfall होती है, उसके साथ में sunshine भी हो रही होती है, उसके साथ में कुछ winds भी चलती है, तो ये होता है weather, जो एक frequently changes होते हैं जिसमें
बार बार चेंजेस आते हैं एक दिन के अंदर, और क्लाइमेट होता है जो बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके बहुत बड़े एरिया में जाके चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. सो दिस इज बेसिकली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. Now the important elements of weather and climate. Now students, elements, they play very important role to tell us about the climate, or we can say weather of any area, or we can say any region. So various important elements we are having, and we can say that the elements of weather and climate, they are same. For example, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation, we can say. So these are the important elements. Now we all know that we used to measure temperature through thermometer. हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं. जैसे हमें फीवर होता है तो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं. तो सेम यहाँ पे ऐसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं, राइट. तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं वो बेसिकली जो शेप है उस थर्मोमीटर की वो यू शेप होती है. यू शेप आप ऐसे किस तरीके से आप कह सकते हो, इस तरीके से शेप में होता है यू शेप का, राइट. और एक साइड में आपका मैक्सिमम और एक साइड में आपका मिनिमम टेम्परेचर, राइट. एंड वी यूज टू पुट दिस थर्मामीटर इन ओपन एनवायरनमेंट. अगर हम इसको रूम में इसको रखते हैं तो वो हमें रूम का टेम्परेचर बताएगा. तो इसको हम ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं जिससे हमें ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बताए, जिससे हमें ये बाहर का टेम्परेचर बताए. एंड वी ऑलवेज कीप दिस थर्मामीटर इन स्टीवनसन स्क्रीन. एक स्टैंड होता है, स्टीवनसन स्क्रीन उसको बोला जाता है. उस स्टैंड के अंदर हम इस थर्मामीटर को रखते हैं, राइट. वो स्टैंड में क्यों रखते हैं, हो सकता है कुछ फौना एनिमल्स या फिर हमारे जो कुछ एनिमल्स हैं उसके ऊपर पैर रख दें या फिर कुछ इस तरीके की कंडीशंस हो जाएं तो वो टूट सकता है. तो उससे बचाव करने के लिए हम इसको स्टीवनसन स्क्रीन में रखते हैं. एंड दैट स्टीवनसन स्क्रीन इज बेसिकली मीन्स पेंटेड बाय वाइट कलर, क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व नहीं करता, जो न्यूट्रल रहता है, इसलिए उसको हम वाइट कलर से पेंट करते हैं. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट वी कैन से एलिमेंट, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो प्रेशर बेसिकली वी कैन से दैट इन एनवायरनमेंट प्रेशर इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर. मीन्स अगर हम एक साइड में हमारे को हाई प्रेशर है तो दूसरी साइड में हमें लो प्रेशर अवेलेबल होगा. सो बेसिकली प्रेशर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. एंड अकॉर्डिंग टू प्रेशर ओनली air, or we can say winds, they move, and winds, or we can say air, they always moves from high pressure. So pressure also plays very important role, and we used to measure pressure through barometer. Then wind means temperature, as I told you that we used to measure by thermometer. Then through barometer we used to measure by, basically pressure is measured by barometer. Then wind. Now see, wind, we are basically, the wind speed is measured by anemometer, and wind direction is measured by wind vane. So two instruments basically we use. Means if we want to know the direction of wind, then we have to take wind vane, and if we want to know the wind speed, then we have to measure that from anemometer. Wind vane. Then humidity. Humidity is again important, means it is basically related to the water vapors, right. So humidity is basically, we can say what kind of water vapors, how much water vapors we are having in the environment. So humidity basically we used to measure through hygrometer, right. Relative humidity or absolute humidity or static humidity basically we used to measure. So that basically we used to measure through hygrometer. Then we are having the last we can say element, that is basically we can say precipitation, or you can say rainfall. So basically we used to measure precipitation by rain gauge. So students, these are important elements through which we come to know about the weather and climate, right. Now we are basically introducing this chapter, like we can say that weather conditions, they fluctuate very often
इवन विद इन अ डे। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वेदर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं एक दिन के अंदर। हो सकता है धूप निकल रही हो, उसके साथ में बारिश हो रही हो, उसके साथ में हवाएं चल रही हो सकता है एक डिस्टेंस पर आपको रेनफॉल मिले और छोटा सा आगे डिस्टेंस पर जाने के बाद में आपको रेनफॉल ना मिले। सो इस तरीके के जो वेरिएशंस होते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड वेदर कंडीशंस। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं पर विंड्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, कहीं पर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो कहीं पर ब्राइट कंडीशंस हो सकती हैं, तो कहीं पर वेट हो सकता है, तो कहीं पर ड्राई हो सकता है। तो ये फ्रीक्वेंटली जो इस तरीके की कंडीशंस हमें मिलती हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। सो बेसिकली द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स, मीन्स वी यूज टू डिवाइड अ ईयर इनटू सीजन्स। एग्जाम्पल वी कैन से विंटर, समर और रेनी सीजन, और वी कैन से retreating monsoon season. So world is divided into so many, or we can say number of climatic regions. Like Kopians have divided the world climate into different climatic regions, like hot weather climate, cold, or we can say desert, or we can say humid climate. So basically we are having several divisions of climate regions throughout the world, and in India also we are having different type of climatic conditions in different regions, right? But we often relate monsoon with always rain, but monsoon word is basically arrived from an Arabic word which is mausim, which literally means season. But in India basically we used to relate monsoon with the rain, right? So monsoon is basically related to the season, or which literally means season. It is an Arabic word. ये Arabic word से जब Arabic sailors जब हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने यहाँ पर मॉनसून वर्ड बेसिकली मीन्स ये मॉनसून वर्ड वहाँ से अराइव हुआ, और उसका मीनिंग है सीजन्स, और वी कैन से रिवर्सल चेंजेस in the seasons, right? So it basically monsoon refers to seasonal reversals in the wind direction during a year. तो wind में changes जो आते रहते हैं, ठीक है? several kind of we can say winds we are having, like permanent winds, seasonal winds, or we can say local winds. तो इनमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन में चेंज आता है जो कहीं ना कहीं सीजन पर भी इम्पैक्ट डालते हैं. So basically India's climate is completely described as monsoon type of climate. Why we are calling it monsoon type of climate? क्योंकि यहाँ पर monsoon, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका मीनिंग है सीजन्स, तो हमारी कंट्री के अंदर हम 4 तरीके के सीजन्स को फेस करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, जैसे हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी सीजन, और वी कैन से रिट्रेटिंग सीजन. देन monsoon basically as I told you that we are having basically monsoon type of climate which mainly found in south, or we can say southeast India. So there are basically we can say perceptible regional variations in climatic conditions within the country. मतलब हमारी कंट्री के अंदर रेनफॉल में कहीं ना कहीं वेरिएशंस हैं. जैसे हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, या फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की जो मेघालयन रीजन है, इन एरियाज में हमारी कंट्री के अंदर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. लेकिन हम जैसे जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ मूव करते हैं तो ये रेनफॉल में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, रेनफॉल में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आते जाते हैं. तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं सीजनेबल चेंजेस हैं, और वो कहीं ना कहीं सीजनेबल चेंजेस हमारी रेनफॉल के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? सो इट ऑल्सो पुट इम्पैक्ट ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस ऑल्सो. मतलब हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है, उस पेनिसुलर इंडिया के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है. Means in tropical region we are having some different kind of temperature conditions, and in subtropical India we are having, or we can say in temperate India we are having some different kind of temperature conditions. That also we'll study in next topics in this chapter. Then some of the important examples we can give related to the climatic range in India, right? In summers we can say, or we can say means in summers the mercury, or we can say the temperature touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert. तो summers के अंदर राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट अराउंड पहलगाम विच इज इन J&K और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है that in the same day means in the basically we can say in summers in those same days we used to found 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर. तो यहाँ पर आप देखिए कितना वेरिएशन है. मतलब वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है उसमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच रहा है, और J&K में आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच रहा है. सो इन, और वी कैन से इन विंटर सीजन basically in we can say Dras, or we can say in Jammu and Kashmir,
the temperature reaches -45 degree Celsius or sometime above -40 to 45 degree Celsius. So means we can observe here also, means what kind of temperature variations we are having throughout the country. And if we talk about the southern part, means in Thiruvananthapuram, the average temperature may reach 22 degree Celsius. तो आप देखिए वेस्ट पार्ट में जो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, डेजर्ट एरिया की, वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हम जम्मू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर हम विंटर्स में बात करते हैं, जो द्रास रीजन है, जो लद्दाख से ऊपर वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपका -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। और उन्हीं दिनों में सेम सदर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम रीजन की, तो हमारा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ पे। तो आप देखिए ये रीजनल वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में, इनमें कहीं ना कहीं इस तरीके से चेंज आता है। देन वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन, मींस रेनफॉल के अंदर किस तरीके के वेरिएशंस है, मतलब हमारे रीजन के अंदर रेनफॉल, हमारी कंट्री के अंदर रेनफॉल किस किस तरीके से होती है। सो सिमिलरली वी कैन से दैट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट यहाँ पे रेनफॉल के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं। सो वी कैन से दैट व्हाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज के जो अपर पार्ट्स है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटर हिमालयाज है या फिर हमारे जो ग्रेट हिमालयाज हैं, वो ग्रेटर हिमालयाज पे हमारी सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो स्नोफॉल होती है। मींस वो स्नोफॉल होती है, वहाँ पे रेन बहुत कम होती है बट स्नोफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो मेघालयन रीजन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मेघालयन रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और या फिर हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट की जो विंडवर्ड साइड है, उसके अंदर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हमारे होती है। और अगर हम लद्दाख रीजन की बात करते हैं या फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, इफ यू यूज्ड टू टॉक टू अबाउट मींस लद्दाख और वी कैन से वेस्टर्न राजस्थान, देयर वी यूज्ड टू रिसीव rainfall that is less than 10 centimeter. So we can analyze from here that means what kind of means precipitation variations we are having, मतलब रेनफॉल में किस तरीके के वेरिएशंस हमारी कंट्री के अंदर है। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज पे जाते हैं तो वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उससे नीचे आते हैं तो अगर मेघालय रीजन पे जाते हैं या फिर हम जो वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ओवर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और लेकिन अगर हम वेस्टर्न राजस्थान में जाते हैं या फिर हम लद्दाख रीजन में जाते हैं तो वहाँ लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो रेनफॉल होती है, मेनली जो रेनी सीजन है वो जून से सितंबर तक चलता है। मींस 1 जून के आसपास में, नियर अबाउट 1 जून, द मॉनसून एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम 2 ब्रांचेस दैट वी कैन से अरेबियन सी ब्रांच और वी कैन से बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये 2 ब्रांचों से मॉनसून एंटर करता है 1 जून के आसपास में। हमारी जो केरला या फिर हम कह सकते हैं जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट जो रीजन है, वहाँ पर हमारा मॉनसून एंटर कर जाता है। और फिर वो टाइम के साथ साथ में हमारे नर्दर्न प्लेन्स को या फिर हम कह सकते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को या नर्दर्न पार्ट को कवर करता हुआ निकल जाता है। सो बेसिकली वी कैन से सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु कोस्ट और वी कैन से मीन्स लार्ज पोर्शन ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, they basically we can say receive the rainfall in retreating monsoon season। मतलब उस टाइम पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट विल स्टडी लेटर, राइट। तो वो रेनफॉल क्यों नहीं होती है, वो हिली रीजन्स की हाइट बहुत कम है वहाँ पर, ईस्टर्न घाट्स की, इस वजह से वहाँ पर इतनी रेनफॉल जो रेनी सीजन है उसमें नहीं होती है। लेकिन रिट्रेटिंग मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे। जब मानसून वापस लौट के जाता है तब वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, राइट। So this was all about related to variation in rainfall in our country. Then variation we can means according to the variation means the people of our country, they are basically living different means they are basically prevailing different variety of lives. Like we can say in terms of the food they eat, means it is also accordingly we can say means climatic conditions we are growing the various kind of food crops in different regions। तो हर region के जो फूड क्रॉप्स हैं या फिर जो जिस तरीके का वो खाना खाते हैं वो अलग अलग होता है। अगर वो हम बात करते हैं कपड़ों की तो हर जगह का अलग अलग पहनावा होता है। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, राइट। और द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे माइसनराम या चेरापूंजी रीजन की, जो हमारे खासी हिल्स के अंदर बेसिकली अवेलेबल है, जो मेघालयन रीजन के अंदर, तो अगर हम वहाँ पे बात करें तो वहाँ पर आपको मेनली वुड हाउसेस मिलेंगे, लकड़ी के बने हुए घर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर हम जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड में अगर आते हैं तो हमारे वहाँ पे आपको जो हाउसेस है वो मतलब परमानेंट सेटलमेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके के वेरिएशंस हैं, ये किसकी वजह से, ये प्रेसिपिटेशन की वजह से हो सकते हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये वेरिएशंस हो सकते हैं।
Now coastal areas, we all know that coastal areas, they have, or we can say they have less contrasts in temperature conditions. मतलब जो कोस्टल एरिया है, वो कोस्टल एरिया आप देखिए, जो पेनिसुलर इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, परमानेंट बॉडीज हैं वो वाटर बॉडीज, जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है। तो वहाँ पर टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आता है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर में इतने वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आप विंटर्स की बात करोगे तो भी वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे आपका 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको अवेलेबल होता है विंटर्स में। या फिर अगर हम समर्स की बात करें तो वही 22-25 तक आपका टेम्परेचर समर्स में भी अवेलेबल होता है, और रेनी सीजन में भी यही कंडीशन होती है। बट रेनी सीजन में वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट थ्रू आउट द ईयर वी ऑल्सो फाइंड ह्यूमिडिटी मोर इन कोस्टल रीजन, बिकॉज इट इज़ बेसिकली कवर्ड बाय बिग वाटर बॉडीज, और वी कैन से permanent water bodies from its 3 sides. Like, so variations in seasonal impact, we can say, between contrasts is more in the interior of the country. मतलब जैसे ही हम इस कोस्टल एरिया से इंटीरियर पार्ट की तरफ मूव करते हैं हमारे इंडिया में, मतलब हम जैसे ही नर्दर्न प्लेन्स की तरफ आते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश या राजस्थान की तरफ हम मूव करते हैं कोस्टल एरिया से, तो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती जाती है। मीन्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोग फेस करते हैं। मतलब हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, हो सकता है अगर हम विंटर्स में हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो मतलब उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। उसको हम बोलते हैं, वी कैन डिफाइन इट बाय वन वर्ड, दैट इज कॉन्टिनेंटलिटी, राइट। सो देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नर्दर्न प्लेन्स ऑल्सो। जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडिया में, तब भी वहाँ पर रेनफॉल में कमी आती है, राइट। सो दीज वर द बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स related to this chapter, and we can say in certain places there is a wide difference between day and night temperatures also. Like हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, we can take example of Thar desert, means day temperature in the summer season may reaches 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका हो सकता है राजस्थान में, लेकिन it may decrease till we can say near about 15 डिग्री सेल्सियस in the same night. तो इस तरीके के चेंजेस हमारी कंट्री में हम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेदर चेंजेस हम हमारी कंट्री के अंदर देखते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के अंदर टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डेजर्ट एरिया। सो ऑन द अदर हैंड वी कैन से देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस in any day and night temperature in the Andaman Nicobar Islands, or we can say in the coastal area of Kerala. मतलब वहाँ पे डे और नाइट के अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं आता है टेम्परेचर में। अंडमान निकोबार के अंदर हम बात करते हैं, आइलैंड है हमारी कंट्री का, इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके का चेंज नहीं आता। मीन्स अंडमान एंड निकोबार बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं आता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ से वो आइलैंड पानी से घिरा हुआ है। और अगर हम केरला की बात करें तो वो मेनली वहाँ पे जो हमारी परमानेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के चेंजेस वहाँ पे नहीं आते। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.